अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकोलिया टाइम्स। आज हम बंगाल के जनता की बात के तहत मौजूद हैं चाकोलिया के BLNRO ऑफिस के सामने बहरिया चौक में। और यहाँ सामने जिस तरह से देख पा रहे हैं कि चाय की दुकान है और यहाँ लोग बैठे हैं, सब अपने अपने मोबाइल में पश्चिम बंगाल की राजनीति को देख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। आइए जानते हैं और समझते हैं इन्हीं लोगों से क्या रहने वाला है यहाँ अब की बार। एक বিধানসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গতে হবে, তাতে আপনি কি দেখছেন এখানে কিরকম কি আছে এখানে? হ্যাঁ, চাকলিয়াতে এখানে তো আগে থেকে ভিক্টর সাহেব এমএলএ আছে। হ্যাঁ, এখন দেখা যায় কি হয়, কার জয় হয় এটা বলা যাবে না। গ্রামে গ্রামে আমরা ঘুরি না, আমরা চাষি লোক, যেখানে থাকি সেখানকার কথাই বলতে পারবো। হ্যাঁ, ওইখানকারই কথা আপনার কাছে জানতে এসেছি আমরা। হ্যাঁ, এইটুকু সে কথাটাই বললাম। এখানে ভিক্টর এমএলএ আছে, আবার কে আসছে সামনে বলতে পারবো না। তো এখন বিগত 40 বছর থেকে ওরাই এমএলএ আছে একই পার্টির, হ্যাঁ, ফরওয়ার্ড ব্লকের। কিন্তু এবার কি দেখছেন কি উনি থাকবেন না কিছু বদলাবে? না, এটা বলা যাবে না, এবার ধারা বলা যাবে না। এবার অন্য চলছে। আচ্ছা, তো পশ্চিমবঙ্গতে আপনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাকে চান? মমতা ব্যানার্জিকে চাই। কাজকর্ম ভালো করতে পেরেছে? ভালো কাজ করেছে, অনেক কাজ করেছে, আরো কাজ করবে। উনি থাকলে আমাদের ভালো আছে। কিন্তু বিজেপি যে এখন বলছে রাজ্যতে, বিজেপি এসে যে এখন বলছে যে 200 থেকে বেশি আসন নিয়ে আমরা সরকার গ্রহণ করব, তারপরে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার আম জনগণের সাথে অন্যায় করেছে, কিছু কাজকর্ম করতে পারেনি। সে বললে কি হবে? আমরা তো ফলাফল পাচ্ছেন। হ্যাঁ, আপনি কৃষক। হ্যাঁ, এই যে কৃষক বন্ধু যেটা যোজনা, কৃষক বন্ধু প্রকল্প যে রাজ্য সরকারের চলছে, তাতে 5000 টাকা বছরে দেওয়া হয়, সেটা কি পাচ্ছেন আপনারা? আমরা পাচ্ছেন। হ্যাঁ, যতগুলি প্রকল্প রাজ্য সরকারে চলছে সব গৃহস্থ পাচ্ছে। আচ্ছা, কিষাণ যত আছে সবাই পাচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে চান? চাই। নাম দাদা আপনার? তোরাবালি। হ্যাঁ, তোরাবালি। সোহরাবালি। তোরাবালি। বাড়ি দাদা আপনার? ফুলবাড়ি কাটা। ফুলবাড়ি কাটা। তো এবার যে বিধানসভা নির্বাচন 2021 কিছুদিনের মধ্যেই অ্যানাউন্সও হয়ে যাবে। আর আপনারা জানতেই পারবেন, মোবাইলে টিভিতে দেখছেন যে পুরো পশ্চিমবঙ্গতে রাজনীতিটা একটা আলাদা রং নিয়ে নিয়েছে। ঠিক। তৃণমূল ছেড়ে নেতারা বিজেপিতে যাচ্ছে, বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে আসছে, ওই খেলাধুলা চলতেই থাকবে। আপনার এখানে কি মাহল? মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনি কাকে চান? আমি তো এবার বাঙালি দেখতে ওই বিজেপি জিতবে। বিজেপি? কেন জিতবো বিজেপি? ওর সরকার है, सब है, वो প্রধানমন্ত্রী है, तो কার সরকার জিতবে? কে জিতবে? কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের কাজকর্ম ও গেল এবার। গেছে। ঠিক। তো এই দাদা বলছেন যে বিজেপি সরকার করবে। বিজেপি করবে। আরো তো আচ্ছা, বিজেপি কে কি দেখছেন আপনি? যে বিজেপি চাকলায় ভোট পাচ্ছে। ও নাম জিয়াউর রহমান। বাড়ি ফুলবাড়ি। তো এবার যে মানে 2021 বিধানসভা নির্বাচন হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 10 বছর থেকে মুখ্যমন্ত্রী আছেন, তো এবার কি দেখছেন আপনি? কি উনি থাকবেন না আপনাদের এখান থেকে কিছু বদলা বদলি হবে? সম্ভব না তো হচ্ছে কি যে উনি থাকার, আমরা তো ইচ্ছা করছি যে ওকে রাখবো, মমতা ব্যানার্জির দিকে আমরা আছি, এখন বলা যাচ্ছে না। তো চাকুলিয়া যে জায়গাটাতে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, এই বিধানসভায় বিগত 40 বছর থেকে এক পার্টিরই বিধায়ক, ফরওয়ার্ড ব্লকের। আর আপনি চাচ্ছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকুক। তো এখানকার আপনারা কি চান যে এখানে কি এবার উনি বিধায়ক থাকবেন না বদলাবেন? এখানে তো ওরই সম্ভাবনা আছে। ভিক্টরের না, তৃণমূলের। আচ্ছা, হ্যাঁ। না, যেভাবে রাজ্য জুড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজকর্ম চলছে, সেই কাজকর্ম নিয়ে আপনি কতটা সন্তুষ্ট আছেন? যে না, যে কাজকর্ম প্রকল্প ছাত্রছাত্রীদের পুরা সন্তুষ্ট আছি। হ্যাঁ, কাজকর্ম ভালো করছে। ওই যতটা করলো, অনেক করলো। এখন ও যদি চলে যায়, তো ও যাওয়ার পরে কিন্তু অনেক লোক পস্তাবে। আমাদের এলাকার চাকুলিয়াবাসীর যত লোক আছে সব পস্তাবে যদি মমতা চলে যায়। তো আমরা ওটাই চাচ্ছি যে মমতা সরকার যদি এখানে থাকে তাহলে আমাদের রাজ্যের জন্য ঠিক থাকবে, আর যদি না থাকে তাহলে সবকে চলে যেতে হবে। আমাদের এখানে একটা কলেজ হলে খুব ভালো হয়, কারণ আমাদের এখানে ছাত্রছাত্রীর পড়ালেখার খুব অসুবিধা হয়, কারণ ইসলামপুর যেতে হয়, অনেক দূর কলেজে এক্সামই। অনেকই ছাত্রছাত্রীরা ওইরকম আছেন যারা পড়াশোনা করতে চান, কিন্তু ওর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক না হওয়ার পথে ওরা ওইদিকে যেতে পারেন না, আর নিজের পড়াশোনাটাকে ব্রেক করে দেন। পড়াশোনাটা ব্রেক করে বিষয়টা খুব অনেক দুঃখের বিষয়। আমাদের চাকুলিয়া অঞ্চলে যদি একটা কলেজ হয়, তাহলে অনেক লোক আমাদের এখানে যে আছে সব মূর্খ ঘুরে বেড়ায়, অনেক লোক আছে। কিন্তু এখন একটা যদি কলেজ হয়ে যায়,
তো গরিবের ছেলেও কলেজে পড়তে পারবে আশা করা যাচ্ছে। तो एक भाई हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम इनसे कुछ 2-4 बातें जान लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अब्दुल अजीज घर कहाँ? काहटा। काटा। तो जिस तरह से अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा निर्वाचन का बिगुल बज ही गया है, हर पार्टी अपने तरीके से प्रचार पे जुट चुकी है, क्या देखते हैं सर इस बार आप? क्या मुद्दा होगा, जमीनी मुद्दा चुनाव का आपके यहाँ से? जमीनी मुद्दा जो है, यहाँ वामफ्रंट सरकार जिस टाइम था उसी टाइम शिक्षा का बारे में, रास्ता घाट, कलभट, ब्रिज, ये सब जो हुआ था उसी टाइम हुआ था। अच्छा। बाकी जब से ये जो है ममता दीदी सरकार में आई है ना, हम लोग को देखे बोलने में तो सुनते हैं बहुत उन्नयन है, लेकिन उन्नयन नाम का कोई चीज़ है नहीं। मतलब जमीन में उन्नयन नहीं नजर आता? जमीन में उन्नयन नहीं आता है। कैसे आता है उन्नयन? जो एक आदमी का पॉकेट में बेनिफिट जरूर जाता है, लेकिन सार्वत्रिक जो उन्नयन इलाका का वो नहीं है। जैसे कि आप देखिए, कहीं एक स्कूल का जरूरी है, वहाँ तो स्कूल नया होता नहीं है। कहीं कलभट का जरूरी होता है, कलभट नया होता नहीं है। अब यहाँ जितना बड़ा बड़ा कलभट देखिएगा, ब्रिज देखिएगा, आपका रास्ता घाट देखिएगा, हाँ, जैसे स्कूल देखिएगा, सारा वामफ्रंट सरकार का अमल में था। ये 9 साल 10 साल में ये सब कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जो राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है, वो उन योजनाओं का लाभ तो जमीन पर मिलता हुआ दिख रहा है। जमीन पर एक आदमी को जो है कुछ दिन के लिए लाभ मिल जाता है, जैसे यह रूपोश्री हुआ, कन्याश्री हुआ, ये सब जरूर मिलता है। कृषक बंधु भी मिलता इसमें है हमको एक बेनिफिट मिल गया, लेकिन अगर कहीं एक शिक्षा प्रतिष्ठान बन जाता है तो उसमें तो सबका लाभ होता है ना। जैसे कोई एक रास्ता बन जाता है तो सबके लिए लाभ होता है, लेकिन ये सार्वत्रिक उन्नयन जिसको बोलते हैं वो नहीं। 40 साल का बात अगर बोलते हैं तो पहले 40 साल का ही बात हम बोल रहे पहले, उसके बाद ये जो है एमएलए साहब का बात बोलेंगे। 40 साल यहाँ वामफ्रंट का एमएलए था, है अभी तक, यही बोलते हैं ना विरोधी, 40 साल में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ आपको तो बोले, एक अगर प्राइमरी स्कूल देखिएगा तो वामफ्रंट सरकार का अमल में ही है, तो वो 40 साल का जो एमएलए था उसी का फसल है। कहीं अगर एक मदरसा देखिएगा वो वामफ्रंट सरकार का अमल में हुआ है, वो भी अगर देखिएगा तो 40 साल का विधायक का फसल है। कहीं हाई स्कूल देखिएगा वो भी 40 साल का अंदर हुआ है। कहीं अगर रोड रास्ता, जैसे कि आप कालीबाड़ी से रामपुर रास्ता, ये वामफ्रंट सरकार बनाया। नहीं, ये तो दावा कर रहा है कि पीडब्ल्यूडी रोड में ये शामिल किया गया है, ये तृणमूल के अमल में हुआ है। पाठ रामपुर, आपका कालीबाड़ी चौक से रामपुर, पाठहट्टी मोड़ टू मजलिसपुर, इधर दलकोला कॉलेज मोड़, समस्तपुर टू। हम बताते हैं आपको, ये जो है कालीबाड़ी से लेकर रामपुर रास्ता, वो नया है या पुराना है आप लोग जानते हैं। ये रास्ता पहले बन चुका था, इस बार जो है रिपेयरिंग हुआ है। आप अगर कोई रास्ता टूट जाता है तो उसको रिपेयरिंग नहीं कीजिएगा, तो रिपेयरिंग हुआ है। पाठहट्टी से लेकर मजलिसपुर जो रास्ता वामफ्रंट सरकार किया था, ये अभी पीडब्ल्यूडी रोड में आ गया है ना। हाँ ठीक है, वो आया है, लेकिन पहले रोड तो था ना, पहले रोड था, रोड बना हुआ था, जो कि टूट गया था, उसको फिर रिपेयरिंग किया है। अब आपका पाठहट्टी से लेकर मजलिसपुर का रास्ता वो भी वामफ्रंट सरकार का अमल में हुआ है। तो पहले वो सरकार में थी तो उनको तो बना नहीं था, बना नहीं लेकिन पाया। जब दोबारा टूट गई तो वे तृणमूल के अमल में उसको पीडब्ल्यूडी रोड किया गया है ना। तो ऐसे बोलिए ना कि हम रिपेयर किए हैं। कहीं अगर आपका ये हथियार अगर टूट जाता है तो आप नया लेते हैं ना। टूटने का मतलब रास्ता खराब तो एक नया बनाइए ना, जहाँ नहीं है टोटल रास्ता वहाँ बनाइए तब ना। लेकिन ये तो यहाँ पे लोग यातायात ज़्यादा करते हैं, तो पहले ये जरूरी है। नहीं, ये जरूरी है, तो ये रिपेयरिंग हुआ ना, इसमें जो है बना हुआ है, आपको खाली रंग कर दी। ये पहले पीडब्ल्यूडी नहीं था, नहीं था, तृणमूल के अमल में इनको पीडब्ल्यूडी किया गया है। ये बात हम भी मानते हैं, किया गया है, लेकिन रोड था। कहीं से भी बने रोड, किसी भी दफ्तर से बने, लेकिन रोड था, उसको जो है रिपेयर किया है। तो क्या देखते हैं कि चाकोलिया में जो मौजूदा विधायक हैं फिर से वही विक्टर। अच्छा, फिर तजाबुल कहाँ घर हुआ? चकली काहटा। चकली। अच्छा, तो जिस तरह से 2021 विधानसभा निर्वाचन कुछ ही दिनों में हो ही जाएगा ऐलान, और जानते हैं कि राजनीति का बिगुल बज चुका है, तो आपका चुनावी मुद्दा इस बार का क्या होगा? जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? पहला नंबर बात, हम तो वोट टीएमसी को देंगे। अच्छा, उसके बाद टीएमसी को काहे देंगे? जो टीएमसी का जो सरकार है बहुत सारा काम किया है, 700 साथी हुआ, किसान बंधु हुआ, उसके बाद खाद्य साथी हुआ, कन्याश्री, रूपोश्री, जुबोश्री, बहुत सारा काम किया है, इसलिए हम उसको वोट देंगे। अभी जो आप कृषक बंधु का बात बोले, कृषक बंधु के तहत जो सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं किसानों के खाते में, वो मिलता है या फिर कागजों में रहता है? हमारा मोबाइल में, अपना मोबाइल में स्टेटमेंट आपको दिखा देंगे हम। आपको किसान बंधु का जो स्टेटमेंट होता है बैंक से, जो बैंक में रुपया घुसता है, उसका स्टेटमेंट मेरे पास है अभी। अच्छा, आपके अकाउंट में पैसा है? हाँ,
हम क्या, पूरा पश्चिम बंगाल के लोगों को मिलता है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब राज्य सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसका जमीन में भी लोगों को लाभ मिल रहा है। हाँ, बहुत आदमी को रुपया मिला है, मिलता है, मिलता रहेगा। जितना दिन ममता बनर्जी सरकार में रहेंगे उतना दिन मिलता रहेगा। चलिए, तो जिस तरह से अभी बीजेपी दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ ममता बनर्जी की सरकार अन्याय कर रही है, यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ लोगों को ज़मीनी स्तर पर लाभ नहीं मिलता है, कटमनी ज़्यादा लिया जाता है, सब कटमनी में डूबे हुए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सरकार है, हर भारत का हर स्टेट में, मैंने 2, 4, 5 स्टेट छोड़कर हर स्टेट में बीजेपी का। 65% हाँ, राज्य में, तो वो सब स्टेट में लड़की सब सुरक्षित है क्या? बीजेपी वालों को उठो, बस आप लोग पहुंचाइए जो उस स्टेट में भी महिला लोग सुरक्षित है क्या? उत्तर प्रदेश में अभी 2-3 महीना पहले क्या हुआ, उठो कांड जो हुआ, तो हमारा पश्चिम बंगाल में जिस दिन से ममता बनर्जी सरकार हुआ है उस दिन से अभी तक कोई घटना तो नहीं घटा है। अभी जो घटना घटता है वो बीजेपी लोग करवाता है, बीजेपी करवाता है और शासक दल को इल्जाम ठहराता है जो वो लोग करता है। तो क्या आपके हिसाब से तृणमूल का क्या स्थिति रहेगा इस बार पश्चिम अच्छा रहेगा, दूसरे से पार पाएगा सीट। साकिब अख्तर कहाँ से हैं आप? यही काटा। अच्छा, तो क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव का आपका? जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे कि नहीं एक मुद्दा होता है? यही सोच कर जाएंगे हम लोग, जो जैसे मान लीजिए आज से 35 साल वामफ्रंट सरकार हमारा जो राज किया है, तो पहले भी उन लोगों का गवर्नमेंट था, हमारा भी है, अभी टीएमसी पार्टी का है, हम एक वोटर हैं, कोई नेता होता कोई लीडर नहीं है, हम साधारण वोटर है। साधारण वोटर है। तो उस टाइम जो था, तो उस टाइम भी तो मान लीजिए जैसे उन लोगों का फंड में, वक़्त फंड में पैसा था, मगर उन लोग तो खड़ाया नहीं, लगाया नहीं, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं। अभी जैसे हमारे ममता बनर्जी आने के बाद जो कन्याश्री, युवश्री, रूपश्री, वार्धक्य भत्ता, उसके बाद मान लीजिए स्टूडेंट लोगों को साइकिल दे रहा है, किताब दे रहा है, उसका मान लीजिए मिड डे मील, इतना अभी जितना इसका डेवलप किया है उस टाइम नहीं था इतना डेवलप। उसके बाद कितना सारा योजनाएं प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जैसे घर घर जाके लोगों का हर समस्या का समाधान करने के लिए मैंने एक तो प्रोग्राम चालू किया है दुआरे सरकार, शायद आपको भी पता होगा। इतना सारा योजना करने के बावजूद भी अगर पब्लिक नहीं चाहेगा तो गलत बात है। आप क्या चाहते हैं कि हम तो चाहते हैं जो यही रहे कि इतना डेवलप करने के बाद, क्योंकि 35 साल वामफ्रंट रहने के बावजूद भी ऐसा तो किसी को ऐसा मैंने ऐसा सुविधा नहीं मिला था। मैंने रातों रात मान लीजिए जैसे स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया, हर आदमी को, गरीब हो चाहे अमीर हो, दिन दुखी, हर किसी को दिया गया है। हमारे यहाँ से काहाटा वार्ड से 4 मरीज। योजनाओं का जो सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है जी, প্রকল্প যাকে বলে প্রকল্প, বাংলা में সেটার কি মানে লাভ জমিতে মানুষ পাচ্ছে? হ্যাঁ, অবশ্যই পাচ্ছে। যেমন ধরেন যে আপনার একটা যে মানুষের দ্বারা কথা বলা ওকে কাটমানি, যে কোনো কাজ করতে যাও মানে কাটমানি নেওয়া হয়, রিশওয়াত নেওয়া হয়, ঘুষখোরি, কারাপশন, তাতে আপনি দেখেন ওগুলো কোনো ব্যাপার নাই, আগেও হয়েছে এরকম, কিন্তু আমরা তো এখন এরকম দেখতে পাচ্ছি না। যেমন ধরেন যে এখন কৃষক বন্ধু করেছে, ওখানে কাটমানি নেওয়ার তো কোনো ব্যাপারই হয় না। যেমন ধরেন আপনি ডকুমেন্টস নিজের এভিডেন্স জমা করলেন, আপনার অ্যাকাউন্টে ডাইরেক্ট টাকা ঢুকে যাচ্ছে, আপনার জমির টাকা। কৃষকদের কৃষি বন্ধু যেটাকে বলা হয় বাংলা ভাষায়, কৃষকদের কৃষি বন্ধু, কেন বামফ্রন্ট সরকার কি দিয়েছিল এর আগে কোনো এরকম সুবিধা যে কৃষকদেরকে নিজের জমি চাষ করছে ওদেরকে ফসল রোপণ করার জন্য ওদেরকে কোনো সুবিধা, কোনো টাকা দেওয়া হতো যে হ্যাঁ এত টাকা দিলাম আপনার চাষবাস করার আগে, আপনি সে টাকাটা নিয়ে আপনার নিজের জমিতে চাষবাস করেন, দুটা জনমজুর খাটান, নিজে খাটেন, বিচন কিনেন, রোপণ করেন, এরকম কোনো সুবিধা দিয়েছিল কি? কেউ বলতে পারবে? কোনো সরকার গভর্নমেন্ট বলতে পারবে দিয়েছিল? কেউ বলতে পারবে না। যেটা ন্যায্য কথা আমি সেটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি, ঠিক আছে কি না? তারপরে বলেন যেমন কি যে আপনার এই যে প্যাক্সে ধান বিক্রি করা হচ্ছে, যে ধানটা আপনি মার্কেটে যদি আপনি বিক্রি করতে যান আপনাকে 1400 থেকে 1500 টাকা রেট দেওয়া হবে। আপনি এখানে ধান বিক্রি করলেন, আপনার সিরিয়াল যে হিসাবে আসে সেই সিস্টেম মোতাবেক আপনি ধান বিক্রি করলেন, দিলেন, আপনাকে 1830 টাকা রেট দেওয়া হচ্ছে, কি 40 টাকা যাই হোক, 1800 আপ আছে দেওয়া হচ্ছে। আপনার 2 দিন পরে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাচ্ছে। এরকম গভর্নমেন্ট কোনো এরকম কোনো সুবিধা দিয়েছিল কি? কইতে চান যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের যা কিছু হয়েছে ভালোই হয়েছে? হ্যাঁ, ভালোই হয়েছে। এবারও কি আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চান? অবশ্যই চাই। ठीक ठीक ठीक। और कुछ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मैं आपको कुछ कौन सा चौक है, बेहरिया
कांटा बेहरिया चौक से कुछ लोगों से बात कर रहा था जो आपने सुनी। वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकोलिया टाइम्स के लिए कांटा बेहरिया चौक से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।